Manna, We is it know audible? that non-living things do not move on their own. They can move only when we push or pull them. We push or pull a door to open or to close it. When you push or pull your toy car, it moves. A force is a push or pull. It moves stationary things from their positions. Effects of force. The changes that a force can bring about is called its effects. When a force is applied on a body, these effects can be seen. 1. A force can change the shape or size of an object. For example, when an inflated balloon is pressed between two hands, its shape changes. 2. A force can make a stationary object move. For example, if you push a chair or small table, it will move from its position. However, if you push a car, it may not move. These objects remain stationary because the force applied by us is not sufficient to move the body. 3. A force can change the direction of a moving object. For example, a batsman changes the direction of a moving ball by tilting the cricket bat. 4. The force can stop a moving object. For example, in a game of football, when a player applies his foot as a force to stop the movement of the football. 5. A force can increase or decrease the motion of an object. When a force is applied on a moving body, it can bring about a change in the speed of the moving body, depending upon the direction in which force is applied. For example, when we give push to a moving swing, we make it move faster. When we apply a force in the opposite direction, we make the swing slow down. In everyday terminology, the term force is used to describe something which involves a great effort. Force is frequently used in our daily life. We need to apply force to make a stationary object move, or to stop a moving object, or to slow it down, or to change its direction. Types of forces. Different types So of I hope it is clear to all of you what is force. Actually, force is a kind of push और pull. किसी भी चीज को जब हम खींचते हैं या धक्का देते हैं उसे हम फोर्स कहते हैं. वो उसकी वजह से क्या होता है, उस चीज की जो स्पीड होती है वो इंक्रीज भी हो सकती है, कम भी हो सकती है. अगर हम किसी पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसे उस फोर्स की वजह से उस चीज की जो स्पीड है कभी कभी वो स्लो डाउन भी हो जाती है और कभी कभी तेज भी हो जाती है. कुछ ना कुछ इम्पैक्ट उसके ऊपर जरूर होता है जब भी हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं. तो डिफरेंट काइंड ऑफ फोर्सेस है. मस्कुलर फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है. forces are 1. Muscular force. 2. Gravitational force. 3. Magnetic force. 4. Frictional force. Muscular force. The force exerted by the muscles of human body is called muscular force. We use our muscles during running, playing, and working. Animals exert muscular force to do a heavy work, such as plowing, pulling cart, etc. Gravitational force. Whenever an object is thrown vertically upwards, it comes down to the earth. Mangoes falling from a tree always come down. Why can they not go up? This is because the earth pulls all the objects towards its center. The pull exerted by the earth on the objects is called the force of gravity or gravitational force. The force by which an object is attracted towards the earth is called its weight. So, the weight can be defined as a force with which a body gets attracted
towards the center of the earth. Magnetic force. The force by which a magnet attracts or repels objects like iron, steel, nickel, and cobalt is called magnetic force. A magnet attracts another magnet when unlike, different poles of different magnets are brought near each other. A magnet repels another magnet when like, same poles of different magnets are brought near each other. Whether a magnet attracts or repels another magnet will be clear from this activity. Frictional force. Roll a rubber ball on the ground. After some time, the ball stops. Similarly, if we stop pedaling a cycle, its speed will reduce and after some time, it stops moving. We have read that a force can move and stop an object. That is, it can bring an object to motion and it can bring an object to rest. A moving object, like a bicycle, stops after some time because an opposite force from the ground acts on it. Similarly, the rolling rubber ball stops after some time because a force acts on it in opposite direction of its motion. Frictional force tries to stop moving objects. Know this. The force of gravity accelerates everything at the same rate, regardless of weight. If you drop balls of the same size but different weights from a rooftop, they will hit the ground at the same time. So I hope you get some idea what I'm going to teach you today. आप लोगों को थोड़ा थोड़ा आइडिया मिल गया होगा कि आज मैं अश्विका बच्चे मे बी यू आर हैविंग नेटवर्क इशू दैट्स व्हाई यू आर नॉट गेटिंग इट क्लियर, तभी आपको ये क्लियरली समझ में नहीं आ रहा होगा। कोई इशू नहीं है बेटा, मैं आपको दोबारा से ये चीजें सारी समझाने वाली हूँ आज। ओके फाइन, व्हाट इज फोर्स? हु इज गोइंग टू आंसर मी? रेज योर हैंड। Ashvika, your hand is already raised. That's why I'm not considering your hand. So, what is force? Okay, Gursheen Kaur. Unmute yourself, Gursheen. मैम अ पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। बिल्कुल सही। जब भी हम किसी चीज को पुश करते हैं, किसी चीज को हम धक्का मारते हैं, अपनी ओर खींचते हैं, पुल करते हैं, वो जो अप्लाई होती है उसे हम कहते हैं उसे हम कहते हैं फोर्स। कभी भी आप out and there is too much noise from your side, there is too much. सो सिंपल आप क्या करिए, कभी घर पे ना एक छोटे से रबर बैंड को एक थ्रेड से बांध दीजिए और उसको ऐसे हैंग कर लीजिए, ऊपर से ना डाउनवर्ड्स हैंग कर लीजिए। उसके बाद आप वो एक बिल्कुल स्टिल पोजीशन में उसको रखिए। आप उसको थोड़ा सा टच करेंगे ना, वो हिलना शुरू हो जाएगी। वो क्यों हिलेगी? बिकॉज यू आर अप्लाइंग सम फोर्स ऑन इट। बेशक फोर्स हमारा छोटा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि फोर्स हमेशा बहुत पावरफुल होता है, बहुत तेज होता है, बहुत हैवी होता है। जब हम किसी चीज को Riddhi, I will take attendance later. First, I will explain the lesson, then I will take attendance. So, हमारा जो फोर्स होता है वो बहुत छोटा भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हमारा फोर्स जो होता है बहुत ज्यादा तेज ही होना चाहिए या हमारा फोर्स बहुत ज्यादा हैवी चीजों के लिए होता है, लाइट चीजों के लिए भी होता है। बस जब कोई चीज अपनी पोजीशन को चेंज करती है, इसका मतलब है कि उसके ऊपर हमने फोर्स अप्लाई किया था। अगर मेरे पास एक क्वेश्चन पड़ा हुआ है, सपोज आई एम हैविंग दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को मैं अगर ऐसे सारा दिन पकड़ के बैठी रहूंगी ना, तो ये सारा दिन मेरे हाथ में ऐसे ही रहेगा। लेकिन अगर मैं चाहूंगी, मैं इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करूंगी, इसको ऊपर ले जाऊंगी, इसको नीचे लेकर आऊंगी, तब जाके इसकी पोजीशन चेंज हो सकती है। खुद से तो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकता है। स्क्वीजिंग होता है किसी चीज को निचोड़ना। स्क्वीजिंग का मतलब होता है किसी, रूपाक्षी विल इज आस्किंग मी फॉर व्हाट इज स्क्वीजिंग। स्क्वीजिंग का मतलब होता है किसी चीज को निचोड़ना। सो व्हेनेवर वी अप्लाई सम फोर्स ऑन एनीथिंग, इट विल चेंज इट्स पोजीशन। अब वो फोर्स किसी तरह की भी हो सकती है, क्योंकि वी आर हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ फोर्सेस। हमारे पास अलग अलग तरह की फोर्सेस होती हैं। हु इज गोइंग टू टेल मी डिफरेंट काइंड ऑफ फोर्सेस? ओके रूपाक्षी, अनम्यूट योरसेल्फ।
हाँ जी रूपाक्षी। Any kind of force. Okay, Shagundeep, unmute yourself बच्चे। शगुंदी बेटा अनम्यूट योर। Yes, ma'am. जी बेटा, आप किसी भी तरह की फोर्स के बारे में मुझे बताइए। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ फोर्स वी हैव लर्न इन दिस वीडियो, डिफरेंट काइंड ऑफ फोर्सेस। एनी फोर्स यू कैन प्लीज आस्क मी, जस्ट गिव मी वन एग्जांपल ऑफ एनी काइंड ऑफ फोर्स। किसी एक फोर्स का कोई भी एग्जांपल दे दीजिए आप मुझे। Ma'am, elastic force. यस, इलास्टिक फोर्स क्या होती है, क्या आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकेंगे बेटा मेरे को? मैम, जब कोई आदमी किसी स्टिक को लेकर जंप करता है उसको इलास्टिक फोर्स कहते हैं। नॉट एट ऑल। इलास्टिक फोर्स क्या होती है बच्चे? इलास्टिक फोर्स में क्या होता है, जरूरी नहीं होता है हम स्टिक को लेके जंप करें, स्टिक को लेके फोर्स नहीं। इलास्टिक फोर्स में क्या होता है, जब हम किसी चीज को स्ट्रेच करते हैं। इलास्टिक का मतलब होता है किसी चीज को खींचना। आप सबके पास रबर बैंड्स होते होंगे जो आप बालों में डालते होगे, रबर Yes, बैंड ma'am. होते हैं जो बालों में डालते हो, बिल्कुल। एक रबर बैंड लीजिए, उसको स्ट्रेच कीजिए, खींचिए, उसको ऐसे खींचिए। आप उसको खींच पाते हैं ना? Yes, ma'am. दैट इज इलास्टिक फोर्स। वो इलास्टिक फोर्स है। जो आपने एग्जाम्पल दिया पोल, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इलास्टिक फोर्स, लेकिन ये नहीं कि उसको लेके जंप करना। यस रिया, यू आर हैविंग रबर बैंड, स्ट्रेच इट, स्ट्रेच इट। यस, वेरी नाइस। दिस इज नोन एज इलास्टिक फोर्स। इलास्टिक फोर्स में जब हम किसी चीज को स्ट्रेच करते हैं। सेकेंड, वी आर हैविंग ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सी होती है? हमारी जमीन के अंदर हमें पता है एक फोर्स है जो हर एक चीज को हमारी जमीन के साथ बाइंड करके रखती है, हर चीज को जमीन की ओर खींच के लाती है। दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। हम कोई भी चीज ऊपर की तरफ फेंकेंगे, हम कुछ भी ऊपर फेंकते हैं ये वापस नीचे आ जाता है। हम कोई भी चीज ऊपर की तरफ फेंकेंगे, लाइट, हैवी, कुछ भी ऊपर की तरफ फेंकेंगे वो वापस धरती पर आ जाता है। इट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। जमीन के अंदर की जो ग्रेविटेशनल चुंबक शक्ति है, उसने हमारे एटमॉस्फेयर को अपने साथ बाइंड करके रखा हुआ है। हमारा एक लेवल है। अब देखो, आपने कभी देखी होंगी ना, मूवीज देखी होंगी, जब स्पेसशिप कोई हमारे उस एटमॉस्फेयर लेवल से बाहर चली जाती है तो चीजें उड़ना शुरू हो जाती हैं। Yes, ma'am. वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है। जहां तक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, तब तक चीजें जो होती हैं जमीन के साथ जुड़ी रहती हैं, और जो चीजें उस लेवल को क्रॉस कर जाती हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर हो जाती है। वहां तक ग्रेविटेशनल फोर्स उन्हें नहीं पकड़ सकती है। टू टाइप ऑफ फोर्सेस क्लियर? दो फोर्सेस तो आपने ही मुझे बता दी। वन इज मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स में हमारी मसल्स की जो शक्ति होती है, जो हम अपनी मसल से फोर्स अप्लाई करते हैं, दैट इज नोन एज मस्कुलर फोर्स। इस फोर्स में क्या होता है, इस फोर्स में जो भी चीज होती है जिसमें हम अपनी बॉडी की मसल्स को यूज करते हैं, उसे हम मस्कुलर फोर्स करते हैं। हम एक्सरसाइज करते हैं, हम अपनी मस्कुलर फोर्स यूज करते हैं। हम खेलते हैं, हम अपना मस्कुलर फोर्स यूज करते हैं। हम कोई भी काम जिसमें हम अपनी मेहनत यूज करते हैं उसे हम मस्कुलर फोर्स कहते हैं। वन मोर इज मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स में हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फोर्स में क्या होता है, मैग्नेट्स, सबको पता है मैग्नेट्स क्या होते हैं? मैग्नेट सबको पता है, मैग्नेट्स आयरन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। ऐसी फोर्स जिसमें मैग्नेट किसी चीज को, लोहे को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, उसमें जो शक्ति होती है उसे हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। और मैग्नेटिक फोर्स खाली मैग्नेट के साथ नहीं होते, अभी आप अगली बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। आगे जब आप जाएंगे, आप अपनी बड़ी क्लासेस में भी पढ़ेंगे, जो मैग्नेटिक फोर्स होती है, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ही हमारी अर्थ इस तरह से घूम सकती है। ये आपकी अगली 6th-7th क्लास में आप इसके बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फोर्स का क्या इम्पैक्ट होता है हमारी अर्थ के ऊपर। और मैग्नेटिक फोर्स में एक चीज हमेशा होती है। यस प्लीज, वन स्टूडेंट्स वांट टू गिव एग्जांपल ऑफ गंतव्य। अनम्यूट योरसेल्फ गंतव्य। शी वांट टू गिव एग्जांपल ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। अनम्यूट योरसेल्फ बच्चे। मैम, मैम एक ने मैम प्रोनाउंस नहीं हो रहा मेरे से। मैम, मैकेनिकल फोर्स की एग्जांपल है, व्हेन ए ड्रिल मशीन डिग डाउन इज कॉल्ड मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल फोर्स, वो मैकेनिकल होता है।
हम मैग्नेटिक की बात कर रहे हैं बच्चे, गंतव्य हम ना मैग्नेटिक की बात कर रहे हैं। जो आप बोल रहे हो ना मैकेनिकल, दैट इज अनदर काइंड ऑफ मैकेनिकल फोर्स होती है जिसमें हम मशीन्स का यूज करते हैं। जैसे हमारे हमारे कोई हैवी लॉग्स होते हैं, बहुत बड़ी खतरनाक खतरनाक सी लोहे की बड़ी बड़ी रॉड्स होती हैं, उनको हम मैन पावर से नहीं उठा सकते, इंसान की शक्ति से नहीं उठा सकते हैं, तो उसको उठाने के लिए हम क्रेन्स का यूज करते हैं, वहां पे हम मशीन का यूज करते हैं। सच टाइप ऑफ फोर्स इज नोन एज मैकेनिकल फोर्स। उस तरह की जो फोर्स होती है उसे हम मैकेनिकल फोर्स कहते हैं। Now I will share you more lesson for few more points of this lesson. Just wait for a while. I'm going to share with you. We'll start it with the start force. Anything force can move any object. जो force होती है वो किसी भी stops. क्या बात है प्रियांशी, why you are touching the screen? कोई भी चीज को हम जब कोई फोर्स लगाते हैं, अगर कोई प्लेयर अपनी स्ट्रोक देता है, अपने बैडमिंटन को क्रिकेट को कोई स्ट्रोक देता है, दैट इज ऑल्सो ही इज ऑल्सो अप्लाइंग सम फोर्स। गाड़ी को धक्का दे रहे हैं, वी आर अप्लाइंग सम फोर्स। अगर कोई मिट्टी से काम कर रहा है, क्ले से कोई काम कर रहा है, उसमें भी वो अपनी फोर्स यूज कर रहा है। सो अब फोर्स क्या होती है? पुश और पुल विच इज अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। कोई भी पुश या पुल जो भी किसी भी ऑब्जेक्ट को दिया जाता है उसे हम फोर्स कहते हैं। फोर्स कैन मेक अ मूविंग बॉडी स्टॉप और कैन मूव अ बॉडी विच वॉज एट रेस्ट। जो फोर्स होती है वो किसी भी चीज को रोक सकती है, स्टॉप कर सकती है, चलती हुई चीज को रोक सकती है, और किसी भी रेस्ट पोजीशन वाली चीज को सॉरी मूव करवा सकती है। इट कैन चेंज द शेप ऑफ बॉडी। इसकी वजह से जो बॉडी की शेप है ये भी चेंज हो जाती है। टाइप ऑफ फोर्स। अब फोर्स के क्या क्या टाइप हैं? देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स। अब कौन कौन से टाइप्स की फोर्सेस होती हैं? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस। as we learn about different type of forces are mechanical force, gravitational force, मैकेनिकल फोर्स होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, फ्रिक्शनल फोर्स होती है। बहुत अलग अलग तरह की फोर्सेस होती हैं जो अप्लाई की जाती हैं किसी भी चीज़ को रोकने के लिए, किसी भी चीज़ को काम करवाने के लिए। ग्रेविटेशनल फोर्स आप सबको पता है। ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता है? हम किसी भी चीज़ को ज़मीन की ओर खींच के रख सकते हैं। जब भी हम किसी चीज़ को ज़मीन की ओर खींच के रखते हैं, दैट्स द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। मस्कुलर फोर्स भी मैंने आपको समझा दिया। मस्कुलर फोर्स में कोई भी चीज जो होती है जिसमें हमारी मसल्स का यूज होता है, वेयर वी यूज द मस्कुलर पावर, दैट इज नोन एज मस्कुलर फोर्स। नेक्स्ट इज मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल फोर्स के लिए हम मशीन्स का यूज करते हैं। जितनी भी मैकेनिकल फोर्सेस होती हैं उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम यूज करते हैं मशीन्स का यूज करते हैं, दैट इज मैकेनिकल फोर्स। So gravitational force, what is gravitational force? A natural force exerted by the earth which attracts all objects towards itself. एक ऐसी फोर्स जो हर चीज को अपनी ओर खींच के रखती है, इसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। we are held the surface of this, हमारा जो सरफेस है अर्थ का जो ना जुड़ा हुआ है सन के साथ रहता है, ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही है कहीं ना कहीं। नेक्स्ट वी आर हैविंग फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स जो होती है बच्चे, फ्रिक्शनल फोर्स में ना किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट, अगर आपने देखा होगा कभी फुटबॉल को आपने किक किया और उस फुटबॉल को स्टॉप करने के लिए जो फोर्स हम यूज करते हैं दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। इसका मतलब है जो फ्रिक्शनल फोर्स है यहाँ अपोजिट साइड से यूज करते हैं। जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसको हम अपोजिट साइड से यूज करते हैं। जिस भी डायरेक्शन में मोशन जा रही होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई किया जाता है उसे फ्रिक्शनल फोर्स कहा जाता है। Again I am explaining you this frictional force we are applying in opposite direction। जिस भी पोजीशन में कोई चीज मूव कर रही होती है उसका जो अपोजिट साइड होता है, उसका जो दूसरा साइड होता है, अपोजिट वाला साइड होता है, उसमें जो हम फोर्स यूज करते हैं उसे हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है। नेक्स्ट दिस इज
स्मूथ सरफेस, जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है वो स्मूथ सरफेस पे तो इजी होती है हमारे लिए, लेकिन जो रफ सरफेसेस होती हैं, जो ऊबड़ खाबड़ जगह होती हैं, वहाँ पे हमें फ्रिक्शनल फोर्स को यूज़ करना बड़ा ही डिफिकल्ट हो जाता है. सो दिस इज अबाउट फ्रिक्शनल फोर्स. Next, muscular force. I have already explained to you. Anything in which we use our muscular power, कोई भी ऐसी force जिसमें हम अपना muscular power use करते हैं, उसे हम कहते हैं अपना muscular force. उसे muscular force कहा जाता है. So anything, कहीं पे nail लगाना है, fruits को cut करना है, vegetables को cut करना है, इन सब चीजों के लिए हम अपना muscular force को use करते हैं. मैग्नेटिक फोर्स, जो आयरन के पीसेस होती हैं उनके साथ जब हम आयरन को अट्रैक्ट करवाते हैं, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक फोर्स. उसको कहा जाता है मैग्नेटिक फोर्स. जहां पे मैग्नेट का यूज होता है, चुंबक का यूज होता है, उसे कहा जाता है मैग्नेटिक फोर्स. सो द फोर्स बाय विच द नेल्स आर अट्रैक्ट टुवर्ड्स द मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स. So this is all about different kind of forces. This is all about this lesson. I hope it is clear to all of you. समझ में आ गया आप सब लोगों को ये lesson? सिर्फ force, only force, not work, not energy, only force. Are you understand this? What is force? What is? Any doubts? Anyone is having any doubt? Yes, Ashvika, unmute yourself. Yes, ma'am. Ma'am, मुझे फ्रिक्शनल फोर्स समझ नहीं आया. बेटा फ्रिक्शनल फोर्स होता है जिसमें हम अपोजिट साइड, मतलब फोर्स को जब अपोजिट साइड से यूज किया जाता है उसे फ्रिक्शनल फोर्स कहा जाता है. जब फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में यूज होती है उसे फ्रिक्शनल फोर्स कहा जाता है. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. And ma'am, what is the meaning of this gravitational force? ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जो जमीन के अंदर की फोर्स होती है, जो हर चीज को अपनी ओर जोड़ के रखती है, जमीन के अंदर जोड़ के रखती है, उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Any other question? Yes, Riya. Yes, Riya, unmute yourself, बच्चे. Ma'am, what is meaning of muscular force? What is? Muscular force. क्या मस्कुलर फोर्स का क्या? मस्कुलर फोर्स क्या होती है? जो मसल्स की फोर्स होती है, जो हम अपनी मसल से फोर्स यूज करते हैं उसे मस्कुलर फोर्स कहा जाता है. जो भी फोर्स हम अपनी मसल्स की फोर्स को यूज करने को मस्कुलर फोर्स कहा जाता है. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. वेलकम टू यू. वेलकम. Shubhana, unmute yourself. Ma'am, what is the meaning of gravitational force? ग्रेविटेशनल फोर्स होती है बेटा जो जमीन के अंदर की फोर्स होती है, जो जमीन को अपने साथ खींच के रखती है, उसे कहा जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. ओके सहज, अनम्यूट योरसेल्फ. अनम्यूट योरसेल्फ सहज. यस मैम. हाँ जी बेटा बोलिए. मैम मैकेनिकल फोर्स क्या होता है? मैकेनिकल फोर्स होती है जो मशीन्स के साथ, जो मशीन्स के साथ यूज करने वाली फोर्स होती है उसे हम मैकेनिकल फोर्स कहते हैं, जिसमें हम मशीन्स का यूज करते हैं. मैम. ओके बेटा. मैम थैंक यू. यस रूपाक्षी, अनम्यूट योरसेल्फ. मैम, रूपाक्षी, अनम्यूट योरसेल्फ. यस बेटा. मैम मुझे ना ये हाँ वाली जी लाइन बेटा. का मतलब समझ नहीं आया. मैम जो 141 पेज में रिमेम्बर है ना, उसका मतलब क्या है? अप्लाई अ फोर्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू स्टॉप अ ट्रॉली फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन अ स्लोप. दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स. जब भी हम किसी चीज को रोकने के लिए, किसी चीज को स्टॉप करने के लिए जो फोर्स यूज की जाती है उसे फ्रिक्शनल. जैसे कोई एक बॉल, किसी ने हिट किया बॉल को, बॉल कंटिन्यूसली एक डायरेक्शन में चल रहा है, हमने उस बॉल को स्टॉप करने के लिए दूसरे साइड से फोर्स अप्लाई की, हमने अपने हाथ रखे, जो भी जिस भी तरीके से हमने उस पर फोर्स अप्लाई की, दैट इज नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स. मैम थैंक यू मैम. Shabana, unmute yourself.
शुबाना अनम्यूट योरसेल्फ बेटा. Kawalpreet, unmute yourself. Ma'am, what is the meaning of magnetic force? बेटा जो मैग्नेट की फोर्स होती है, जो मैग्नेट से चुंबक, मैग्नेट हम चुंबक को कहते हैं, जो मैग्नेट से फोर्स हमें मिलती है उसे हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं. Okay, ma'am. Yes, Riddhi, unmute yourself. Ma'am, what is meaning of complex machines? कॉम्प्लेक्स मशीन्स होती है जो मशीन्स सिंपल मशीन्स होती हैं जो इजीली जिन्हें हम यूज कर सकते हैं. कॉम्प्लेक्स मशीन्स होती हैं जिन्हें हम जो मशीन्स को यूज करने के लिए हमें मैन पावर एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत भी पड़ती है. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, Riddhi. Now Viraj, unmute yourself, beta. Viraj, unmute yourself. Prableen, unmute yourself. Prableen. Yes, ma'am. Yes, बच्चे. Ma'am, what is the meaning of elastic force? इलास्टिक फोर्स होती है जिसे हम स्ट्रेच करके किसी भी चीज को स्ट्रेच करने में जो फोर्स का यूज होता है दैट इज इलास्टिक फोर्स. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. भव्या, unmute yourself. Ma'am, Bhavya what is Gupta, the meaning of muscular force? जो हमारी मसल्स के लिए यूज होती है. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. अनंतिका. अनंतिका, unmute yourself. Oh my God. Excuse me, ma'am. Yes, बेटा. मैम, मुझे इलास्टिक फोर्स के बारे में समझा दो. बेटा इलास्टिक फोर्स होती है वो फोर्स, इलास्टिक फोर्स वो फोर्स होती है जिसमें इलास्टिक फोर्स वो फोर्स होती है जिसमें हम स्ट्रेच करते हैं. किसी चीज को स्ट्रेच करने के लिए जो फोर्स यूज होती है उसे हम इलास्टिक फोर्स कहते हैं. ओके मैम. ओके ओके. So I hope it is clear to everyone. Yes, ma'am. एकजोत, unmute yourself. यस मैम. एकजोत, हाँ जी बेटा बोलिए. मैम, हाँ जी एकजोत बोलिए. मैम जो चीज आपका क्वेश्चन है फोर्स कहते हैं किसके बारे में? कौन सी फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स होती है जब जो फोर्स हम किसी चीज को स्टॉप करने के लिए. थैंक यू मैम. Ma'am. Is it clear? Yes, Fine. ma'am. Okay. Yes. Harmanjot, unmute yourself, Harmanjot. Ma'am, what is the meaning? Ma'am, what is mechanical force? Harmanjot, बच्चे concentrate on your reading. It's not mechanical, it's mechanical force. जो हम मशीन्स जो फोर्स मशीन्स अप्लाई करती हैं उनके यूज से होती है उसे हम मैकेनिकल फोर्स कहते हैं. मशीनिकल फोर्स नहीं कहते, मैकेनिकल फोर्स कहते हैं. Ma'am. हाँ जी बेटा. Ma'am, what is the meaning of magnetic force? जो मैग्नेट जो मशीन मैग्नेट से यूज होती है, मैग्नेट को यूज करके जो फोर्स लगती है उसे हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं. क्लियर बेटा? ओके बच्चे. So I hope it is clear to everyone. Next time we start with the next topic. So thank you. Have a nice day. God bless you all.
Bye, ma'am. बाय बच्चे। Thank you for teaching us. Bye. Bye, ma'am. मैम मैम इज नॉट देयर। मैम इस क्लास से चली गई। हेलो। और मैम ने हनूर को बना दिया होस्ट। क्लास कोई भी नहीं है। लीव कर दे बच्चे यहाँ से क्लास लीव कर दे। मैं भी लीव कर दूंगा। क्लास एंड करूं? कौन मैं दूसरी क्लास के हरनूर जल्दी क्लास एंड